ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ YouTube ਚੈਨਲ Key.05 'ਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ। ETT ਕੈਡਰ 5994 ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਥ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਚੈਪਟਰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆ ਲੰਘ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਲੰਘ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਫਿਨਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਨਫਿਨਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਐਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਐਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਹ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਲੰਘੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਪਰਸ਼ ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਐਟ ਇੱਕ 1 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਰਕਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਲਰ ਹੈ, ਪੈਰਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੈਰਲਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਦੇ ਜੋ ਕੋਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੈਰਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੰਘ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਪੈਰਲਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ? 2 ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਲਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੈਰਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਕੈਨ ਹੈਵ 2 ਪੈਰਲਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਦ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ AB ਇਜ਼ ਏ ਕੋਡ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਫਿਗਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ AB ਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ AB ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਾ ਹੈ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਦੀ। ਐਂਡ AOC, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? AB ਕੀ ਹੈਗੀ? ਆ ਦੇਖੋ, ਆ A
बी ये की हैगी है एक कोड हैगी है, ठीक है। तो जिहड़ा ए ओ सी की है डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर मतलब व्यास है, ठीक है। सच डैट द एंगल जिहड़ा ए सी बी आ सी एंगल अपन 50 डिग्री दिता है। इफ जगह ए टी जी ए तो टी है इज द टेंजेंट मतलब कि स्पर्श रेखा होगी टू द सर्कल दी एट द पॉइंट ए ते दैन द बी ए टी आपा आ की है बी ए टी आप कौन पता करना आ बार वाला, ठीक है। किहड़ा एंगल पता करना है आपा आ वाला एंगल, इन्ना आ वाला एंगल फाइंड करना आपा, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड करना। हुण देखो आप किवें सोल्व करांगे। हुण मैं तुहानूं जो करवाया सी अपना बेसिक कंसैप्ट कराया सी उन्हें तुहानूं दस्सिया कि जो भी अपने सैमी सर्कल आ देखो आ विचालो एक की डायमीटर बन रहा आ उपर वाला सर्कल है इन्ना की है आ सर्कल की बन रहा सारा ये की बन गया अपने को सैमी सर्कल बन रहा ना। तो तुहानूं मैं दस्सिया सी कि सैमी सर्कल दे विच जो एंगल बनता है वो की कितना बनता है 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। आ देखो जो बी एंगल है ना बी ये बी एंगल की बन रहा अपने को 90 डिग्री का एंगल बन रहा, ठीक है। आ बी, ठीक है। अपने को एंगल सी कितना दिता है एंगल सी 50 डिग्री दिता है, ठीक है। एंगल सी अपने को 50 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी कितना एंगल बी अपने को 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अपन पता है कि जी ट्रैंगल होंगी है ट्रैंगल दे तीनों एंगल्स का सम कितना होंगे 180 होंगे, ठीक है। आप लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री लिख सकते ना। आप लिखांगे 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री हो गया जिंदे एंगल ए आप फाइंड कर लाँगे, ठीक है। तो एंगल बी कितना है एंगल बी आप 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल सी कितना है 50 डिग्री है, ठीक है। इजकल टू 180 डिग्री। हुण आप एंगल ए फाइंड करना, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू 180 आ 90 ते 50 कितना 140 होगा उधर आके आप ट्रांसपोज करांगे माइनस कर देंगे, ठीक है। किन्ने डिग्री आ जाएगा एंगल ए अपने को एंगल ए आ जाएगा अपने को 40 डिग्री, ठीक है। एंगल ए किन्नी डिग्री आ गया अपने को 40 डिग्री। हुण जो एंगल ए अपने को 40 डिग्री आ गया, ठीक है। आ एंगल ए 40 डिग्री है तो अपन पता कि सैमी सर्कल के किन्ने डिग्री के बनते होंगे अपने को एंगल 90 डिग्री। आ जेकर 40 डिग्री है, ठीक है। इतने करते हैं जेकर इतने कर लें, ठीक है। आ 40 डिग्री है एंगल देखो आ जोड़ा ए एंगल सी ए बी 40 डिग्री है तो आ सारा 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ये सारा 90 डिग्री तो आप की करेंगे फिर एंगल जोड़ा बी ए टी एंगल बी ए टी, ठीक है। वो किन्ने डिग्री हो जाएगा आप 90 के विचों 40 की कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। 90 के विचों 40 माइनस कितने किन्ने डिग्री रह गया 50 डिग्री, ठीक है। अपने को किन्ने डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। जी अपने को सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। लग गई समझ। इस तरह सम करना पहला अपना एंगल सी दिता है एंगल बी भी बी आप 90 डिग्री क्योंकि सैमी सर्कल के जो एंगल बनता 90 डिग्री का बनता है तो अपन पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के तीनों एंगल का सम 180 होंगे, दो एंगल दिते तीसरा एंगल कढ़ लिया। हुण आप की करेंगे सारा 90 डिग्री है तो उन्हें 40 डिग्री कढ़िया से आप माइनस कर देंगे अपने को 50 डिग्री की आ जाएगा अपने को आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगे चलते हैं आप अगे देखो अगला सम की कहता कहना इफ टी पी एंड टी क्यू जी अपने को टी पी एंड टी क्यू है ये की है टू टेंजेंट है, ठीक है। टू द सर्कल के दो स्पर्श रेखावां है, ठीक है। विद द सेंटर ओ सो डैट जो एंगल आपनू पी ओ क्यू दिता है, ठीक है। जो पी ओ क्यू दिता है 110 डिग्री है दैन का कहना एंगल पी टी क्यू जो एंगल पी टी क्यू आप फाइंड करना है, ठीक है। हुण आई देखो आ जो एंगल है एंगल पी तो एंगल टी, ठीक है। एंगल जोड़े पी है तो एंगल टी है ये जोड़े दो एंगल है इन अपने को इक्वल होंगे है, ठीक है। आ जो एंगल ओ दिता है देखो एंगल ओ कितना
एंगल ओ है अपने को वो दिता अपन 110, ठीक है। हुण जेडे एंगल पी है, ठीक है, तो एंगल क्यू है, ये दो एंगल है, ये एंगल अपने को इक्वल होंगे है, ठीक है। एंगल पी इक्वल एंगल क्यू, ये हो गए 90 डिग्री के। जो तुम थ्योरी के मैं दसिया सी दोनों एंगल कितने डिग्री दे हो गए, 90 डिग्री दे हो गए, ठीक है। हुण देखो जो दोनों एंगल 90 डिग्री के अपने को एक क्वाड्रिलेटर बन रही है, अपने को क्वाड्रिलेटर बन रही है पी ओ क्यू, ठीक है, टी। कि क्वाड्रिलेटर बन रही है पी ओ क्यू ते टी, एक क्वाड्रिलेटर बन रही है जिन्हें अपन एंगल ओ 110 दिता है, एंगल पी तो एंगल क्यू 90 दी है, ठीक है। तो एंगल टी आप फाइंड करना है, पी टी क्यू आप फाइंड करना है। तो आप की है फॉर्मूला लगावे एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल पी एंगल ओ प्लस एंगल क्यू, ठीक है, प्लस एंगल टी 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होंगे ना, ठीक है। हुण अपने को एंगल पी अपन एंगल ये 90 डिग्री है क्यू तो पी, ठीक है। अपन एंगल पी दिता 90 डिग्री, एंगल ओ 110, ठीक है। तो एंगल क्यू कितना दिता है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल आप टी फाइंड करना है इजिकल टू 360 डिग्री, ठीक है। हुण इन्होंने आप जेकर आप ऐड करांगे, ठीक है, जे इन्हों आप ऐड करांगे 360 आदर जाके क्या माइनस कर दें कितना हो जाएगा, ठीक है। 110 तो 90 200 तो 290, तो माइनस किया 290, ठीक है। तो अपने को कितना एंगल निकल के आ जाएगा फिर 300 से 290 के, तो एंगल कितना आ जाएगा 70, ठीक है। सो एंगल टी कितने डिग्री आ गया 70 डिग्री, ठीक है। आप एंगल टी कढ़ना सी, एंगल टी कितने डिग्री आ गया अपने को 70 डिग्री, ठीक है। अपने को बी ऑप्शन बनेगी, ठीक है, बी ऑप्शन बनेगी अपने को 70 डिग्री, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अपने को क्वाड्रिलेटर बन गई सी, वो अपन एंगल दिता हुआ सी पी तो क्यू 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि अपने को एक दो जोड़े एंगल है किसी भी चक्कर दे जो कोई भी अपने को सर्कल दिता होंगे, ठीक है। सर्कल दे जो आ देखो आ एंगल दो बने होंगे ना सैमी सर्कल दे विच, सर्कल दे विच, ठीक है। जो अपने को आ एक की बन गया सैक्टर बन रहा है ना, आ देखो आ सैक्टर इन्ना, ठीक है। इनके जो कि उपर किनारे ते जो बने होंगे, ठीक है, एंगल बने होंगे 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो अपने को 90 के हो गए, तो आप टी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 360 के इक्वल रख के आप एंगल टी आप फाइंड कर लाँगे, ठीक है। अगे चलते हैं आप अगे देखो अगला सम की कहता है, कहता कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए तो, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ए तो एक टेंजेंट हैगी एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। हुण की कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट जी स्पर्श रेखा हैगी है, ठीक है, टेंजेंट जी ए और बी, ठीक है, कितनी हैगी है फ्रॉम ए पॉइंट ए तो 4 फ्रॉम ए 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज़ 4 सेंटीमीटर, जी अपन टेंजेंट दी स्पर्श रेखा ये तो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो अपन दूसरी साइड दी वो कितनी दी है 5 सेंटीमीटर है। हुण कहता रेडियस, हुण रेडियस किहड़ा है ओ तो जो बी तक है आ की है रेडियस इनका, ठीक है। ये परपेंडिकुलर भी है ए बी ते एक ही है सर्कल का रेडियस है, आप रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। हुण आप जी देख के अपन की याद आ रहा है कि आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलांगे, क्योंकि अपन हाइपोटेनियस भी दिता है बेस भी दिता है तो हाइट कढ़नी है, ठीक है। हुण आप जेकर अपन ट्रिपलेट आते हैं, ठीक है, जेकर अपन ट्रिपलेट आते हैं फिर तो आप इनका डायरैक्ट कढ़ लाँगे, ठीक है। फिर तो अपन पता कि जोड़ा 5 4 तो 3 का ट्रिपलेट की होंगे 5 4 का तो इन्होंने ट्रिपलेट की होंगे 3 होंगे, ठीक है। जेकर अपन ट्रिपलेट आते तो आप सीधा दस देंगे जोड़ा कि अपना रेडियस कढ़ना वो 3 होएगा सीधा ही डायरैक्ट,
ठीक है। आप दस सकते हैं रेडियस कितना होएगा 3 होएगा, ठीक है। जेकर अपन ट्रिपलेट नहीं आते, जेकर अपन ट्रिपलेट नहीं आते फिर आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप उन्होंने चैक करना पैना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग की होंगे अपन पता है हाइपोटेनियस का स्केयर मतलब एच का स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू बेस का स्केयर, ठीक है, प्लस लंब का स्केयर, ठीक है, एल का स्केयर ये होंगे ना, ठीक है। हुण अपन को एच स्केयर दिता मतलब 5 का स्केयर, ठीक है, बेस 4 दिता 4 का स्केयर करांगे, ठीक है। एल मान लो आप रेडियस कढ़ना है, एल का स्केयर कढ़ना है 5 इंटू 5 25, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 16, ठीक है, प्लस एल स्केयर। हुण आप की है एल स्केयर कढ़ना आ जोड़ा 16 है इधर आके ट्रांसपोज करांगे 25 के विचों माइनस हो जाएगा तो एल स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। तेनों आप जो रूट इनका भी की करांगे आप स्केयर है तो जोड़ा अपने को 9 है किंदा स्केयर है 3 का ना, ठीक है। हम स्केयर ना स्केयर कैंसल आउट तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो आप आई 3 कढ़नी सी, ठीक है। अगर अपन ट्रिपलेट आते फिर अपन इन्ना ये फार्मूला लगाने की लड़ ही नहीं, ठीक है। एक मैं वीडियो ट्रिपलेट पर बनावांगा जो तुहानूं सीधे डायरैक्ट तुसीं ट्रिपलेट दस सकोगे, जिवें 5 दिता 4 दिता तो तीसरा ट्रिपलेट अपने को इनका की होएगा 3 होएगा, ठीक है। इन्ना कढ़न की लड़ ही नहीं। हुण मैं तुहानूं ट्रिपलेट कढ़न का एक फार्मूला दसदा, वो भी तुसीं नोट कर लेना नाल, ध्यान नाल देखो। हुण देखो हुण अपने दिता आ 5 दिता है, ठीक है, ये 4 दिता है। हुण सीधा इनका ट्रिपलेट जेकर कढ़ना आप इनू याद करने का तरीका देखो, जिवें 4 दिता है, ये उनके ते अप्लाई नहीं होगा। जेकर छोटी जी वैल्यू दी है ना, जेकर छोटी वैल्यू अपने को ओड दी हो ना तो फिर आप की करना, जेकर छोटी वैल्यू ओड दी होंगी, ठीक है, आप उनका की करना होंगे स्केयर करके 2 नाल डिवाइड कर लेना होंगे। इस तरह ट्रिपलेट निकल जाता है। जो भी अगे इस टाइप का सम आया मैं तुहानूं दस दूँगा, तुसीं एक ट्रिपलेट पक्का याद कर लेना 5 4 तो 3 वाला, ठीक है। अगे चलते हैं आप, अगे देखो अगला सम की कहता है ए लाइन इंटरसैक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, कहता एक लाइन है इंटरसैक्ट कर रही है सर्कल नूं 2 पॉइंट से। हुण देखो 2 पॉइंट से कट रही है, एक सर्कल है, आप एक सर्कल लगाने आ सर्कल है, ठीक है। एक लाइन हैगी इंटरसैक्ट मतलब कट रही 2 पॉइंट से, इत्थों लाइन गई आ देखो आ 2 पॉइंट से कट रही है ना, एक पॉइंट आ रहा एक पॉइंट आ रहा, ठीक है। जी एक लाइन जी 2 पॉइंट से कटती है वो लाइन आप कहने छेदक रेखा मान लो आपू सीकेंट कहने, ठीक है। की कहने छेदक रेखा ए लाइन इंटरसैक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए सीकेंट, ठीक है। की कहने छेदक वो लाइन जी सर्कल 2 पॉइंट से कट करे उसनों आप कहने सीकेंट मतलब छेदक रेखा, ठीक है। अगे देखो कहना द टेंजेंट टू ए सर्कल इज डैश टू द रेडियस थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। हुण की कहता एक टेंजेंट है स्पर्श रेखा है टू ए सर्कल की, एक सर्कल लगाइए आप, ठीक है। स्पर्श रेखा मान लो इत्थों गई। हुण की करिए कहता है कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट टू कनैक्ट। हुण जी एक टेंजेंट रही है इत्थे मान लो एक रेडियस है, इनका रेडियस है, इन्हें कॉन्टैक्ट होके जा रही है तो कहते जो रेडियस है वो की है ये टेंजेंट रेखा तो की है अपन पता आ की बन रहा है एक परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। की बन रहा लंब बन रहा परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। कहते टेंजेंट टू ए सर्कल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट इज की है परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई एक टेंजेंट रेखा तो जो एक रेडियस आप बनाने रेडियस खिंचते हैं वो की होंगे ऐटोमैटिकली उस टेंजेंट रेखा तो की होंगे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इस करके अपनी बी ऑप्शन की आएगा परपेंडिकुलर अपना आंसर है, ठीक है। अगे देखो अगे की कहता है कहते द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 18 सेंटीमीटर दैन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सिंपल जहा सम है। की कहता
द डिस्टेंस इज द बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट दी हुई हैं, ठीक है। हम देखो तो मैं फिगर बना के समझाना कि आ देखो एक सर्कल है, दो पैरेलल टेंजेंट इस तरह बननगियां, एक इधरों, ठीक है। हुण कहंदा कि इन्हां दोवां दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है, आ डिस्टेंस है, ये कितना दिता है 18 दिता है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। कहना दैन द रेडियस ऑफ द सर्कल, हुण रेडियस की हो गया, आ पूरा की बन गया डायमीटर बन गया। मान लो डी कितना दिता अपना डायमीटर 18 दिता है, तो रेडियस की हुंदा है अपने को D/2, ठीक है। सो रेडियस इज इक्वल टू 18/2 कितना आ जाएगा 90 और सॉरी 9, ठीक है। कितना आ जाएगा 9, अपना की सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। सिंपल। अगे चलते हैं, अगे देखो की कहता है ए कोड ऑफ द लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कोड दी है, आ देखो आ जी कोड है PR की है कोड हैगी है, ठीक है, एक जीव है, इनकी लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, आ सारी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज ड्रान एट द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर ऑफ द सेंटर, ठीक है। जी की है की कह रहा है द डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर। हम देखो आ अपने को की दी कोड PQR कोड है 30 सेंटीमीटर, जी कि ड्रोन मतलब बनाई गई ड्रान की गई है, ड्रॉ की गई है एट द डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। आ सेंटर की ओ क्यू मान लो ओ क्यू किन्नी दी है अपने को 8 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। ओ क्यू किन्नी दी है अपने को 8 सेंटीमीटर दी है ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू किन्नी दी है 8 सेंटीमीटर। जी PR है PR किन्नी है अपने को 30 सेंटीमीटर, ठीक है। PR किन्नी है 30 सेंटीमीटर। थोनों कह की रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस सर्कल अपने को PQ की है, P तो O सॉरी PO की अपने को की है ये रेडियस है, आप ये फाइंड करना है। हुण देखो जेकर अपने को PR किन्नी है 30 है तो PQ किन्नी हो जाएगी हाफ हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है। अपने को जो PR है ये किन्नी हो जाएगी PR अपने को 15 हो जाएगी इंदा हाफ, आ 15 होगी तो अपने को ओ क्यू किन्नी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप फाइंड की करना अपना रेडियस कितना PQ आप PO आप फाइंड करना है। इनके तो ही पाइथागोरस आप थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। जेकर पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे तो आप सोल्व की हम आप सोल्व करांगे। अगे देखो इन्ना मैं रेज कर लग्या, ठीक है। अगे आप सोल्व करा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने की PO की हाइपोटेनियस हो गया मतलब H का स्केयर हो गया, हाइपोटेनियस OQ हो गया परपेंडिकुलर L का स्केयर, ठीक है। तो PQ बेस हो गया अपना, ठीक है, B का स्केयर, ठीक है। H का स्केयर आप फाइंड करना है, L का स्केयर मतलब L की है परपेंडिकुलर अपने OQ कितना दिता है 8 का स्केयर, ठीक है। तो PQ कितने दिता है 15 का स्केयर, ओके। H स्केयर आप फाइंड करना है 8 का स्केयर 64 तो 225, ठीक है। ये कितना आ गया 225 अपने को कितना आ गया 15 का स्केयर, ठीक है। तो H का स्केयर इज इक्वल टू इन्होंने दोनों ऐड करांगे 4 तो 5 9 8 2, ठीक है। अपन पता है H स्केयर इज इक्वल टू 289 कितना स्केयर होंगे 17 का स्केयर, ठीक है। हुण की है इन्हें कट गया स्केयर कट गया H की वैल्यू कितनी आ गई 17, तो आप H ही कटना सी, H मतलब PO कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो अपनी की है C ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 अपना आंसर आ जाएगा, लग गई समझ। सो दोस्तों अज की वीडियो दे विच इन्ना ही, उम्मीद करदा तुहानूं सब नूं जो भी असम कराए समझ आए होने वधिया तरीके नाल, ठीक है।
और कुछ होर इनके सम कल वाली वीडियो विच करांगे, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों। चैनल ਨੂੰ लाइक सबसक्राइब जरूर करना, ठीक है, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ ਫॉर वाचिंग ਵੀਡੀਓ।